جو ہماری نظروں سے گزری ہے، اس سے بہتر کتاب آج تک جو دیکھنے میں نہیں آئی. یہ کتاب نہ صرف پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے انتہائی معلوماتی خزانہ ہے، بلکہ یونان میں رہنے والے یا جو لوگ پاکستان سے یونان تشریف لائے ہیں ان کے لیے بھی ایک انگیت معلومات کا خزانہ ہے. جو تاریخی حوالے سے پاکستان میں کمیاں پائی جاتی ہیں یونان کے حوالے سے، جب قربیہ وضع یہاں میں تشریف لاتے ہیں حوالے سے، اور تاریخ کے حوالے سے نئی اور جدید تاریخ کے حوالے سے ایک بھرپور جو ہے نا وہ معلومات ہے. میں جناب اجمل سہیل بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سکندر سے سکندر کے اوپر اپنی رائے کریں. صدر محفل اور سکندر یاسر صاحب، عنوان جو ہے آپ کی کتاب کا سکندر سے سکندر، نام بھی سکندر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی یہ محنت اور لگن کا یہ ثبوت ہے کہ آج صاحب ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. صرف اس بات کے لیے نہیں کہ آپ نے کتاب لکھی ہے، بلکہ اس کے لیے بھی کہ آپ کی خدمات یونان کے رہنے والے تمام پاکستانیوں کے لیے بے مثال ہے. مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کتاب میں وہ تمام خوبیاں اور تمام باتیں موجود ہیں جو ایک عام فہم کے لیے بآسانی سے مل سکتی ہیں. کوئی بھی بندہ جو تھوڑی بہت جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو وہ آسانی سے اس کتاب کے مطالعے سے یونان کی کہانیوں، جو پریوں کی کہانیاں پہلے جو سمجھ آتی تھیں، چونکہ کتاب کا جو عنوان ہے سکندر سے سکندر، یہ ایک عام فہم کتاب ہے اور میری طرف سے اور میں تمام دوستوں کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، جیسا کہ آپ سب حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ میرے پیچھے لکھا ہوا ہے، تعارف کا محتاج نہیں. آج کا یہ دن ہمارے جس طرح کی یہ زمین، یہ دھرتی، یہ سرزمین فلسفیوں اور دانشوروں کی زمین ہے، اس میں ایک اضافہ اور ہوا ہے جناب سکندر یاسر چوہان صاحب کی شکل میں. تو یہ ان کی محبت صرف صحافت تک ہی نہیں ہے، بلکہ تمام گروہ بندیوں سے ہٹ کر، مسل کی نعتوں سے ہٹ کر، یہ عوام اور پاکستانیوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور مزید ان کی آکاوشوں اور خدمتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صلاحیتیں دی ہے، یہ اپنا کام بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وطنوں کے لیے یہ قربانیاں بھی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ تمام پاکستانیوں کے لیے دن رات محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سکندر صاحب کے ساتھ مجھے بھی اتفاق ہوا. ایک اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے اعزاز ہے کہ ان کی کتاب کے حوالے سے جو معلوماتی دورہ تھا
मानी यूनान का, उसमें मैं इनके साथ 3-4 दिन रहा और इनकी तहकीक जो है, जो इन्होंने मालूमात वगैरह इकट्ठी की, उसके ऊपर भी मुस्तफीद होता रहा। और जिस तरह इन्होंने मेहनत की है जगह जगह जाके, किताब के मुताले से मुझे क्योंकि इससे पहले भी मैंने किताब पढ़ी, उसमें भी इन्होंने पाकिस्तान में गुजरात के बाद मकामात पर, जेलों में और बाद दूसरी जगहों पे जाके जो तहकीक की। और इनके पास किताब में तो है नहीं है, लेकिन इनके पास तस्वीरों का एक बहुत बड़ा मालूमाती खजाना है जो यूनानी तारीख के हवाले से बड़ा अहम है। और फिर यहाँ पे जो मुख्तलिफ जगह पे इन्होंने जाके तहकीकात की और उसका एक निचोड़ जो है ना, लेकिन अगर ये न सिर्फ इन्होंने इख्तिसार से काम लेते हुए किताब को मुकम्मल किया है, अगर इसको मुकम्मल अपने जामे ताल में लिखे तो शायद इससे ज़्यादा पेज जो है ना वो आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं दावत दूंगा हमारे पाकिस्तान बिजनेस क्लब के मेंबर और मरूफ कॉलमनगार नाज़रीन सुल्तानी साहब को तशरीफ आएं और अपने साहिब सदर और काफिला सहाफत के वालों और मोहतरम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि यह खसूसी प्रोग्राम यूनान के मारूफ व नामवर सहाफ़ी सिकंदर रियाज चौहान साहब की तसनीफ सिकंदर से सिकंदर तक की तकरीब रुनमाई के सिलसिले में मुनक़्क़द हो रहा है। बहुत नाज़रीन, मुझे बंदा नाचीज़ को यूनान में रहते हुए तकरीबन 7 साल बीत गए हैं। शोबा सहाफत से मुंसलिक तकरीब के का मौका इनकी तस्नीफ की तकरीब रुनमाई के मौका पर हुआ है। मोहतरम नाज़रीन, मज़ीद मालूमात के लिए चौहान साहब यूनान में मुकीम वाहिद पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं जो बैक वक़्त 2-3 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। और मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि चौहान साहब की जारी करदा उजाला न्यूज़ वाकई न्यूज़ की दुनिया में उजाला है। मोहतरम नाज़रीन, न्यूज़ रिपोर्टिंग के साथ साथ तसनीफ और तालीम और तहकीक से लगन उनकी इल्म दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। उनकी ताज़ा तरीन तसनीफ सिकंदर से सिकंदर तक की तहकीकी काविश पर मैं उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से समीम कल्ब से खराज तहसीन पेश करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी यह तसनीफ हर हासो आम के लिए यकसा मुफीद और मालूमात अफजा है। मेरे ख्याल में ये जो इनकी किताब है वो MA हिस्ट्री और MA पॉलिटिकल साइंस के तलबा के लिए भी बहुत इंतहाई जो है मुफीद है। और जो स्टूडेंट हैं MA पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं या MA हिस्ट्री कर रहे हैं, उन सब के लिए जो है वो मुफीद है। आखिर में यह करता चलूँ कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिकंदर से सिकंदर तक ये जो इनकी तसनीफ है, सिकंदर के देश यूनान के बारे में मालूमात फ्राम इन्होंने जो की हैं, ये जो मार्का जो इन्होंने सर अंजाम दिया है, जो इत्तफाक से इनका नाम भी सिकंदर है। और मैं इनके लिए आखिर में दुआ गो हूँ कि खुदा करे जोर कलम और ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। मई से कबल ये हमारे पाकिस्तान प्रेस क्लब की तरफ से अपनी कुलीन के लिए चंद दोस्तों का इज़हार किया था। मैं जनाब जाफरी साहब और चौहान साहब को शायरों को शब्द करूँगा कि वो तकरीबन मई का बकायदा आपको तीसरा जन्म मुबारक हो।
चौथा नौमूलूद भी जो है उजाला। असल में इस किताब का नाम होना चाहिए था अर्के सिकंदर, क्योंकि सिकंदर का अर्क, हाँ सिकंदर का अर्क, क्योंकि जिस मेहनत से और जिस लगन से इसको इसकी तसनीफ हुई है वो दूसरे मुसन्निफों के लिए काबिल तकलीफ है। मैं एक बात आपको यकीन से कहूं कि सब लिखारी उनमें दर्जाबंदी नहीं हो सकती। कोई लिखता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई उससे अच्छा लिखता है, कोई बहुत ही अच्छा लिखता है। दर्जाबंदी नहीं है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि सिकंदर साहब बहुत ही अच्छा लिखते हैं। ये हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत और उम्र अता करे और ये जो लिखारियों का एक सिलसिला उन्होंने चलाया है ये मजीद तरक्की करे और आगे चले। चौहान साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वो कभी अर्के सिकंदर ही लिखेंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बरादरी के लिए आज का दिन बड़ा तारीखी दिन है कि हम एक और आजाद से जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं। तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मैं मुमताज समाजी कारकुन और यूनान की जानी तक जानी शख्सियत जनाब इत्तेफाक अकरम भट्ट साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सिकंदर के हवाले से अपनी हालात का इजहार करेंगे। हमारे बड़े मज़दूर मेहमानों को खुश हमने और ये जो तकरीब रुनुमा हो रही है सिकंदर से सिकंदर तक, ये सिर्फ तकरीब ही नहीं एक तारीख लिखी जा रही है जो हम सब के लिए मशअल राह होगी। जो लिखी है सिकंदर रियाज चौहान साहब ने, वो हम सब के लिए एक पहला कदम है। और सिकंदर रियाज चौहान साहब की ये तसनीफ नजर आ रही है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है और अल्लाह ताला इनको इसका सिला भी देगा और इंशाल्लाह ये और भी लिखेंगे हमारे लिए, और भी जो किताबें हैं वो लिखेंगे, सिर्फ तारीख नहीं और भी लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सिकंदर तक आखिरी नहीं होगी, इसके बाद भी सिकंदर साहब लिखेंगे। शुक्रिया। अब मैं जिस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ वो यूनान की मुमताज कारोबारी शख्सियत और पाकिस्तान के तहरीक साहब यूनान के चेयरमैन जनाब राजा असद कैनी साहब हमारी बुजुर्ग शख्सियत और कदम कदम पर हमारी रहनुमाई और हमारा साथ दिया जो किसी तरह के मुताबिक नहीं है जनाब अलहाज साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया मुझे। इतना अच्छा मैं नहीं बोल सकता हूँ जितना अच्छा वो लिख सकते हैं। सिकंदर भाई आपको भाई साहब वो इतना अच्छा बोल नहीं सकते जितना आप अच्छा बोलते हैं। सिकंदर भाई आपकी सबसे बड़ी काबिश जो है इस वक्त वो उजाला है और सिकंदर से सिकंदर तक में खास खूबी ये है इस किताब में कि पाकिस्तान में दूसरी
यूनान से मुताबिक जो किताबें मिलती हैं वो उन्होंने रेफरेंस दिए हैं, दूसरी किताबों का हवाला दिया है। किसी मुसन्निफ ने वहां बैठ के जाके यहाँ आकर के कभी रिसर्च नहीं किया, उसके बाद नहीं लिखा है। एक किताब भी ऐसी नहीं पाकिस्तान में, ये वाहिद किताब है सिकंदर से सिकंदर तक जिसके मुसन्निफ ने खुद यहाँ पर जाके उन जगहों पर जाकर के रिसर्च किया, उसके बाद इस किताब को तहरीर किया। तो किस्मत है इस बकौल इत्तेसाल पढ़ के कि इस तारीखी मौके पर इस तारीख के शाहिद हैं। आने वाली नस्लें हमें भी याद करेंगी कि हम किताब की रुकनमाई में शामिल थे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जोर कलम और करे आपका बुलंद, खूब लिखें आप, इससे बेहतर लिखें। और मैं यहाँ इरशाद भट्ट साहब को मुबारकबाद दूंगा कि ये पौधा यूनान में इन्होंने लगाया था सिकंदर का, पहली मरतबा अपने अखबार में इन्होंने जगह दी थी, उसके बाद आवाज ने, फिर देश प्रदेश में, उसके बाद उसकी कलई जो की है वो हेलेनिक रेडियो ने उस पर रंग चढ़ाया, जो ये बोलना शुरू किया इन्होंने। बहुत शुक्रिया। और यहाँ जो जर्नलिस्ट कलेब पे जो करता धरता लोग हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बेहतरीन कोरमा और दर्दे का बंदोबस्त शायद किया। वो बहुत साल लगा हुआ है और चौहान साहब अपने हाथ से वो किताब जो है वो ऑटोग्राफ लेके आपको अभी आप वो सालों लिखा वो नहीं है आपको तो बिल्कुल आप ही हमारी एक और बड़ी प्यारी और बुजुर्ग शख्सियत जनाब गुलाम नबी भट्ट साहब यहाँ पे सिंफर आए। नाम से गुजारिश करूंगा कि आपकी प्यारी प्यारी बातों से हमारे इस पैसा बोलो पंजाबी सिकंदर चौहान साहब बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्ताक हैं कि जिन्होंने इस में आके एक बाप और अपना काम कट गए लोगों पंजाबी छोड़ जाने सानू भी फखर है कि भी शहर साढ़े गुजरात है। सिकंदर तो सिकंदर भी रहना कि ये अफलातून नहीं है की मैं ना बहुत मुबारकबाद देना। अल्लाह ताला इन्होंने बहुत ज्यादा अकल है और देश को आगे बढ़ाते और चेयरमैन पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब जनाब शहीद मोहम्मद यूसुफ साहब जनाब शहीद कुमार, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बुजुर्गों, प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस तकरीब और वक़ार में जो एक तकरीब रूनुमाई जिस तरह होनी चाहिए, मेरे ज़ाती ख्याल में हम उसका हक अदा नहीं कर सके। मैं अपने आप पे शर्मिंदा हूं क्योंकि जैसी कावश एक अनमोल मुनफरद, ये हमारी बरादरी ही नहीं पहले जुनार की तारीख में ये सेकेंड लीड की हैसियत रखता है। हम यहां पर वही चेहरे हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में हम एक दूसरे को मिलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। किसी मुनफरद काम का
एजाज उस हवाले से होना चाहिए। ये तकरीब यहाँ क्योंकि यूनान के मुतालिक है, उसकी तारीख के मुतालिक है, यहाँ कोई यूनानी चेहरा मौजूद नहीं है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला मैंने सिकंदर साहब से वादा किया हुआ है, हम सब मिलकर जो यहां सब बैठे हैं एक ऐसी पुरवकार तकरीब का इनेकाद करेंगे जो सही मायनों में किसी तकरीब गुनवाई का हक होना चाहिए। यूनानी मीडिया, यूनानी तारीख से तल्लक रखने वाले लोगों को मदऊ किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और इंटरनेशनल लेवल पे उसका हम आपस में बैठकर बाहमी इत्तेफाक से, क्योंकि जो काम बाहमी इत्तेफाक से और सब मिलजुल कर करें उसका एक और ही तासर और नतीजा निकलता है। तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें अकल दे, शऊर दे, वो जज्बा दे, वो मुस्बत सोच दे, ताकि हम जल्दबाजी में अपनी जाती अना के लिए